Here is an outline to study photoelectric effect. This is just an outline, students. The main setup, there are a lot of connections here that will be studying after these basics are cleared. The photoelectric effect, photo means light, electric means charge is coming out and setting up current. So photoelectric effect, current is set up because of light. This effect is a one photon, one electron phenomenon. One photon, one electron phenomenon. What does this mean? In this setup, there is this discharge tube and which has got a negative electrode and a positive electrode, emitter and collector. Emitter मतलब जो कैथोड है उसको हम लोग एमीटर बोलते हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने वाले हैं. जो एनोड है पॉजिटिव उसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं क्योंकि वो कलेक्ट करने वाला है. बिकॉज इट इज पॉजिटिव इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ इट. नाउ व्हाट आर दीस इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ये एनोड अट्रैक्ट करेगा. एनोड को हम लोग कलेक्टर या फिर प्लेट ऐसा भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं. सो कलेक्टर, एनोड और प्लेट डिनोटेड बाय सी पॉजिटिव. एमीटर, कैथोड और फोटो सेंसिटिव सरफेस. फोटो सेंसिटिव ये नेगेटिव है, ये एक पर्टिकुलर मेटल रहेगा. ये कौन सा मेटल रहेगा हम लोग देखेंगे, बट वो फोटो सेंसिटिव होना चाहिए. मतलब वो लाइट जो उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है उसको सेंस करके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा, एमिट करेगा. इन दिस सेटअप देयर इज आल्सो क्वार्ट्ज विंडो ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट एक सोर्स से अंदर आ रहा है. लेट मी टेल यू, दिस लाइट coming from the source is not any ordinary light. It has to be a suitable high frequency radiation. I repeat, it has to be a suitable high frequency radiation. Why? Because when this light is made incident on this photosensitive surface, it has to penetrate inside it. Whatever energy it has got, h nu and hc by lamb, ये एक फोटोन का हो गया. ऐसा stream of photons आ रहा है. मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन. तो ये स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स मतलब क्या, एक के बाद एक ऐसा फोटॉन्स का लाइन है, सीक्वेंस है. वो स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स इस मेटल, फोटोसेंसिटिव मेटल कैथोड के अंदर जाके पेनिट्रेट करना है. तो ऑफ कोर्स उसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए. ज्यादा एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ कम होना चाहिए. उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो हाई फ्रीक्वेंसी सूटेबल. सूटेबल क्यों? क्योंकि वो मेटल टू मेटल डिफर करता है. आई विल कम टू दैट पॉइंट. बट ये मेटल आप अगर अलग अलग मेटल्स लोगे तो आपको अलग अलग frequency का light लगेगा depending on the type of metal you are using. So suitable high frequency radiation when made incident on this metal surface, these photons because of high frequency and high energy they penetrate inside this metal surface and eject electrons from different levels. देखो मैंने इस emitter ये जो है इसका inner mechanism, inner structure यहाँ पे draw किया है. There are many orbits, levels. There are electrons present at different levels. Consider three of them. One is the innermost, three is the outermost, two is the mediocre, किसी बीच के लेवल का है. तो ऐसे तीन इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कंसीडर करेंगे for the sake of example. When this photon strikes this metal photosensitive surface, it penetrates inside and reaches this electron, this electron, this electron. The moment photon penetrates and reaches the electron inside, what will it do? It will transfer its energy to that electron. ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा. देखो फोटोन जो भी आ रहा है, हर एक फोटोन का एनर्जी एक ही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक ही है. सो फोटोन जिसका एनर्जी फिक्स्ड है, ओके, एक फोटोन का बात करेंगे तो एक फोटोन इसको जब स्ट्राइक करेगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा. दूसरा कोई फोटोन इसको स्ट्राइक करेगा, इसको बाहर निकालेगा. तीसरा फोटोन इसको स्ट्राइक करेगा, इसको बाहर निकालेगा. So likewise, one photon strikes one electron and ejects it out of the metal surface. इस प्रोसेस में जो भी उस फोटोन का एनर्जी है, whatever the energy of that photon is, let's say for the sake of convenience or example, I consider it to be 10 electron volt. अच्छा, now electron volt, you better know it students. ये आपने एक कन्वर्जन फैक्टर है जो सब एटॉमिक एनर्जी लेवल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि इसका कन्वर्जन होता है 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. तो 10⁻⁻19 जूल सच अ स्मॉल एनर्जी लेवल. ऑफ कोर्स सब एटॉमिक लेवल पे इतना छोटा ही एनर्जी लेवल रहेगा. तो उस एनर्जी लेवल को कन्वीनियंटली एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिट बनाया है जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसमें 10 का पावर्स नहीं आएगा, फिर विल बी एडजस्टिंग दैट जूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
सो अगर उस फोटोन का एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन का, और उसे स्ट्राइक किया, उसमें से थोड़ा एनर्जी वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज करेगा, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउटसाइड। अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स, कौन सी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा? विल इट बी फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और विल इट बी फॉर द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? किसको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा? इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। ऑफ कोर्स इसको। क्यों? क्योंकि इसका जो बाइंडिंग है, यहाँ पे कहीं पे एक न्यूक्लियस है, उसके साथ इसका बाइंडिंग डिस्टेंस कम होने की वजह से दिस इज स्ट्रांगली बाउंड, सो द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर हियर। तो इसका बाइंडिंग ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसके लिए कम लगेगा, इसके लिए सबसे कम एनर्जी लगेगा, मिनिमम एनर्जी लगेगा। अभी जो इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ही रहेगा। सो टोटल एनर्जी E में से एक हिस्सा जिसको मैं फाई नॉट बोलूंगा, ये फाई नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। व्हाट इज दिस फाई नॉट कॉल्ड एज? वर्क फंक्शन। ये किस में यूज हो रहा है? दिस इज बीइंग यूज्ड टू ओवरकम the force of attraction by the nucleus on this electron and set these electrons free. तो वर्क फंक्शन जैसे मैंने बोला किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? आउटर मोस्ट के लिए। सो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस अट्रैक्शन। तो ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगा। मिनिमम क्यों बोला समझा? क्योंकि इन तीनों में ये सबसे बाहर है, सबसे कम बाउंड है, तो सबसे कम एनर्जी इसको लगेगा। तो इसलिए फाई नॉट को डिफाइन करते समय मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यही आपको डिफाइन करना है। सो दैट मिनिमम एनर्जी, 10 में से थोड़ा एनर्जी इसमें गया, बचा हुआ एनर्जी किसमें जाएगा? इट विल बी सीन एज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको मैं Ke मैक्स बोल रहा हूँ। क्यों Ke मैक्स ही बोला? क्योंकि मिनिमम इसमें खर्च हुआ तो मैक्सिमम एनर्जी उसका रहेगा। मैं इन तीनों के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वर्क फंक्शन इन जनरल अगर आप डिफाइन करो तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। लेकिन स्पेसिफिकली बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो डिफाइन किया जाता है, और ये आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में भी लिख रहा हूँ। तो इसमें फाई नॉट इज ओनली एंड ओनली फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हाउएवर यू कैन आल्सो अप्लाई दिस फॉर एनी इलेक्ट्रॉन इनसाइड, बट आपको सिलेबस में जो जनरली दिया जाता है वो आउटर मोस्ट का ही होता है। सो Ke मैक्स क्यों बोला? देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। जब तक ये मेटल फिक्स्ड है, ये फाई नॉट का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। से ये फाई नॉट आपका है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई नॉट है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया। अगर आउटर मोस्ट को सपोज कंसीडर करो, इसके लिए कितना एनर्जी खर्च हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बचा कितना एनर्जी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी इस थर्ड का बाहर आने के बाद एनर्जी कितना रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस एनर्जी से वो अभी भाग रहा है, मूव कर रहा है, सो दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब भी बाहर आएगा, वही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन आया, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो सपोज इसके लिए खर्च हो रहा है एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंदर वाले के लिए और आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा, लेट्स से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 में से एक, देखो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस है, तो एक फोटोन जब इसको स्ट्राइक करेगा, 10 में से 2 यूज हुआ, 8 बचा। दूसरा एक फोटोन जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही है, उसने इसको स्ट्राइक किया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च किया, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। तो ये अभी कितने काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? 10 में से 4 कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 6। सो नाउ व्हेन दीस 3 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, मेटल के बाहर आने के बाद वो ऐसे मूव करेंगे, तो सबसे आगे कौन सा रहेगा? विल इट बी 1, 2 और 3? द आंसर इज 3। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे आगे भागेगा, फिर उसके पीछे सेकंड रहेगा, फिर उसके पीछे फर्स्ट रहेगा, क्योंकि इसका एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस सबसे ज्यादा कौन सा है? थर्ड। और उस इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी विच इज मैक्सिमम, दैट इज Ke मैक्स। So this is your Einstein's photoelectric equation. Actually ये इक्वेशन हम लोग रीअरेंज करते हैं Ke max के लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है वो अपना आउटपुट है। ये तो इनपुट दिया ना, फिर इसमें से इजेक्ट किया और ये मोशन में आया और ये करंट सेटअप करेगा आगे जाके सर्किट में। Therefore ये अपना मेन आउटपुट है, तो उसका इक्वेशन हम लोग करेंगे Ke max का। So Ke max क्या आएगा? फिर इसमें से E माइनस फाई नॉट। फाई नॉट को क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स? वर्क फंक्शन। और ये क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस।
तो K max का इक्वेशन E minus phi naught is called as Einstein's photoelectric equation. इस फोटो सेंसिटिव मेटल के लिए, कैथोड के लिए, ये डायग्राम आपने प्रॉपरली नोट डाउन करना है, इसके अटैचमेंट में हमेशा ड्रॉ करना है, बेसिक कंसेप्ट्स में. नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, ये जो फोटो सेंसिटिव सरफेस है मेटल, ये कौन सा टाइप का हो सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर द मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर नेसेसरी. माने 10⁻16 हर्ट्ज इतने हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन ही लगता है. लेकिन अल्कली मेटल्स के लिए विजिबल लाइट इज सफिशिएंट, मतलब 10⁻14 हर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी. देखो, हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी मींस लो एनर्जी. सो इवन लेसर एनर्जी इज सफिशिएंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स में क्या स्पेशलिटी है? उसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जल्दी से डिटैच हो सकता है. Hence, most of the times we use alkali metals for this photosensitive surface. तो ये alkali metals कौन से हैं? It is this. इनका मैं एक एक्रोनिम आपको बना के दे रहा हूँ. This is very interesting. You will be loving it. इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं स्टूडेंट्स? We remember this as लीना, कब्र. ये RB को थोड़ा उल्टा याद रखना है. RB को BR के फॉर्म में याद रखना है. लिखते समय कब्र ऐसा लिखना है. लीना, कब्र. CS को बोलना है से. So लीना कब्र से फरार. लीना कब्र से फरार, ये इसका एक्रोनिम है. अल्कली मेटल्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के लिए जो फोटो सेंसिटिव मेटल लगेगा उसके लिए. क्यों यही सिलेक्ट किया? आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है. तो लीना कब्र से फरार में Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, रुबिडियम Rb, सीजियम, दिस इज द बेस्ट फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल स्टूडेंट्स, बेस्ट फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल. एंड Fr इज फ्रांसियम, फ्रांसियम. सीजियम को बेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है. वर्क फंक्शन मतलब ये, वर्क फंक्शन मतलब कि इसको फोटोन आने के बाद कितना एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में खर्च करेगा, वो कम से कम अगर रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है. सो आवर फोकस विल ऑलवेज बी ऑन वन सच मेटल व्हिच विल कंज्यूम मिनिमम एनर्जी फॉर इट्स इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज सीजियम अमंगस्ट दीज ऑल. सो दैट इज द बेस्ट फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पे हम लोग कंक्लूड करेंगे दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ विल बी डिफाइनिंग सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू इट. एक ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है, वो है फाई नॉट, बट वी विल एनलिस्ट दीज. देयर आर 5 डेफिनेशंस एक्चुअली. ये 5 डेफिनेशंस हम लोग एनलिस्ट करेंगे. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक है जो हम लोगों ने काफी बार यहाँ पे डिस्कस किया, वर्क फंक्शन दूसरा है, और इसके अलावा 3 और डेफिनेशंस है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी, wavelength and the potential which we are applying here. So that is our next part of discussion. Our previous discussion ended on the Einstein's photoelectric equation, which suggests that when a light of suitable frequency, that is a suitable energy, is made incident on a photosensitive metal, we call it as emitter here, the cathode, it emits electrons. That means because of photo means light, electrons are emitted. This effect is called as photoelectric effect. The emitted electrons are called as photoelectrons. Out of this total energy, some part, phi naught, which is called as work function, is used for the ejection of these electrons, and the remaining part is available for the propagation, the motion of the electrons in the form of kinetic energy. We took these values. 10 electron volt is the incident energy, 2 electron volt is consumed on its ejection from the metal, and 8 electron volt will be its kinetic energy. Then we discussed these 3 electrons, innermost to outermost. The innermost would consume maximum energy. Here it would be more than 2 electron volt, so kinetic energy would be less than 8 electron volt. So 10 electron volt ka division for this electron will be different than this electron. Of course it will be different for each electron that way, but for the innermost, maximum energy is consumed in the ejection of electron. Lesser energy is consumed for this second electron, least energy is consumed for this third electron, and hence we call this work function as the minimum energy required for the ejection of electrons. But this electron, photoelectron, which is coming out
is not coming out for any incident radiation, any frequency, any wavelength. No, it is for a particular frequency and a particular wavelength. Now these two are included in the formula of phi naught, work function. Work function ka formula is similar to the formula of energy of one photon. Now you better know this, student. From Planck's quantum theory, energy of one photon is h nu, where h is a Planck's constant and nu is a frequency. Nu is substituted by c by lamb. Therefore, this formula also becomes hc by lamb. Now, similar two formula are written for work function as h nu naught and hc by lamb naught. In this, nu naught is called as threshold frequency. Lamb naught is called as threshold wavelength. Phi naught is work function, and this entire effect is called as photoelectric effect. So these first four things are giving you the information of how the photo emission occurs and what are its parameters. We will be also discussing towards the end how this entire process can be stopped, but that is without stopping this light. देखो हम लोगों ने अगर इस लाइट को सोर्स से ही स्टॉप कर दिया, सोर्स को ऑफ कर दिया, तो लाइट गिरेगा ही नहीं, तो इजेक्शन होगा ही नहीं. But we have to think of a special case where the source is still emitting high frequency radiation which is incident on this metal surface, but these photoelectrons will not be completing their path here. What is that condition? That is possible at a certain potential and it is called a stopping potential. Stop करता है वो, इस photo emission को stop करने वाला potential है stopping potential. So first we will discuss the occurrence of photoelectric effect, photo emission, and then we'll also discuss the stoppage of this photoelectric effect. Okay. Now, as we were saying, it is possible at a certain frequency or above certain frequency called as threshold frequency. Let us see what that value is. Now, when I say, students, for any frequency of incident radiation, it is not possible. It has to be greater than a certain cutoff threshold frequency, greater than that value. Only then this metal will emit photoelectrons. See, ये cutoff क्या है? अपने admission के percentage जैसा है. आप admission के time पे you are always demanded your percentage. For example, there is a cutoff 90% and above, then there is admission. 90% and below, then there is no admission. This threshold frequency, only frequency is like that, not the wavelength. Wavelength का उल्टा होगा, तो इसीलिए wavelength के लिए मैं वो cutoff percentage का example नहीं बोलूँगा. So cutoff frequency is like our cutoff percentage at the time of admission. Greater than that particular, there will be photo emission. Lesser than that, there won't be any photo emission.